point of conflict arises, it engulfs me. The situation regarding the UV toll has escalated further. Ahead of the Mahapanchayat, Grand Council called for Sunday's toll behavior in Bakarwala village. Police and security forces have surrounded the Pure Lake. A heavy deployment to the CRPF and Delhi police has been made in the village. Villagers say this is the first time in history that villagers have been surrounded by security forces for fighting for their rights. A Mahapanchayat in Bakarwala village was organized to demand the removal of the toll and a toll-free system. A large number of villagers were about to leave, but before that could happen, the administration deployed security to demonstrate its power. People alleged that they were simply raising their voices for their rights. Why was such a high profile incident called the Bakarwala toll in Mundka, Delhi, sparking anger among local residents and villagers? They say that this toll has not only a heavy burden on the public, but rules and regulations are also being blatantly ignored. The municipal corporation was not supposed to impose a toll within 20-kilometer radius, but locals are being charged around 334 rupees for a single trip. This is not only excessive, but villagers are openly blatantly exploiting the public. बहू तो सुथरी आई पर काणी आई। आइए इनसे बात करते हैं, क्या मतलब है इस बात का? इस बात का ये मतलब है कि हमें एक तरफ से तो मिठाई खिला दी और बाकी हमारे लगा दिया, पेट में दर्द हो गया। अब जब इतना अच्छा टोल बना दिया, रोड अच्छा बना दिया, लेकिन टोल बना के हमारे ऊपर तो सिर पे वो बिठा दिया ना, टोल का खर्चा बिठा दिया ना। अब देहात के लोगों के लिए हमें ही हमसे ही लेके चीजें और हमें ही बेवकूफ बना दिया। ये आया, इसका मतलब बहुत सुथरी आ गई पर कहानी आ गई। ऐसे हमें रोड तो बहुत सुंदर दे दी दिल्ली में, है जी, प्रधानमंत्री जी ने। बाकी इसमें जो हमारी जेब है ना, वो तो कतर दी गई, वो तो कटी गई। तो जेब खाली होगी और रोड सुथरा होगा तो फिर हम निकलेंगे कैसे? हमारे जो तेल का पैसा वो तो टोल टैक्स में ही चला जाएगा। हर देश में, हर प्रदेश में टोल टैक्स नजदीक वालों का 20 किलोमीटर का फ्री होता है। तो हम भी यही चाहते हैं, हमारी सिर्फ यही लड़ाई है। और अगर बुधवार को ये हमारी मांग पूरी नहीं हुई तो इसके खिलाफ हम फिर से आंदोलन करेंगे और अब की बार हमारा फैसला ही होगा, क्योंकि वो टोल सिर्फ उखाड़ ही दिया जाएगा। Public would only have to pay a toll of 65 paise per kilometer. But the toll is being floated by local residents and is charging exorbitant fees. This is directly affecting the pockets of ordinary people and small businesses and is also affecting local farmers who pass through this area repeatedly. Surprisingly, when inaugurating the toll store, Prime Minister Narendra Modi had assured the public of relief. Yet, the public is forced to pay a hefty sum every time they cross the toll. All residents say this isn't just a financial treat, but a forced violation of their rights. They feel distressed. They say the development of Mundka and the surrounding areas was the Delhi government's primary objective. The BJP's primary objective was to protect the villagers. However, the same government has now constructed India's most expensive toll plaza in Mundka, causing economic losses for the villagers. The villagers have called a Mahapanchayat to demand the removal of the toll and the toll-free route. They say that paying toll for daily activities has become a financial burden for them and they will not stop at all now. उसने बुधवार की बैठक मंत्री के साथ हमारी फिक्स कराई है और हम वहां जाकर मांग रखेंगे और पूरी सरकार ने आश्वासन दिया है कि हम आपके साथ हैं इस टोल को हटवाने के लिए, दिल्ली देहात को टोल टैक्स मुक्त बनाने के लिए। वो हमारे साथ इस मुहिम में रहेंगे और हम जाके सरकार से मांग करेंगे कि वो दिल्ली देहात को टोल टैक्स मुक्त करे। कुछ मांगे केजरीवाल ने हमारी मान ली थी, लेकिन नोटिफिकेशन नहीं किया। हमें एक लॉलीपॉप देके जाओ जी, हम इलेक्शन की बात करेंगे, आप हमारा ये हमें वोट एक ये कहो कि आप पार्टी को वोट दो। लेकिन हमने मन बना लिया था, अब की बार हम परिवर्तन करके रहेंगे। हम माननीय होम मिनिस्टर साहब से मिले थे, उन्होंने हमारी 14 मांगे थी। उन्होंने कहा कि भी आप हमारी सरकार आप बनाओ, आप अनाउंस करो। कल रैली में, प्रधानमंत्री की रैली में 2 तारीख को प्रधानमंत्री आर के पुरम में रैली थी। कहते हम आपके ये सारी मांगे 14 की 14 मांगे, इसमें 1-2 कुछ टाइम लग सकता है, लेकिन ये आप मांगे आपकी मानेंगे। अब ये बताओ, हमने वोट दिया, इतनी मेहनत करी, क्या ये टोल एक छोटा सा है गवर्नमेंट के लिए?
क्या ये हमारी इतनी बात भी नहीं हुई, इतनी ये छोटी सी मांग भी नहीं मानेंगे? मेरा नाम एडवोकेट अक्षय लाकड़ा है। मैं दिल्ली यूथ कांग्रेस का अध्यक्ष हूँ। ये दिल्ली के हाई कोर्ट के अंदर याचिका दाखिल करी है परसों, जिसकी सुनवाई अगले हफ्ते होने जा रही है। इस याचिका के अंदर हमारी सबसे पहले मूलभूत मांग है कि जब भारत का संविधान ये कहते हैं कि किसी भी म्यूनिसिपल लिमिट के अंदर आप कोई टोल नहीं लगा सकते, तो किस बेसिस पे आपने मुंडका बक्करवारा टोल यहाँ पर लगाया? उसके साथ ही भारत का संविधान ये भी कहता है 2008 के नियम के तहत फी एंड रेगुलेशन ऑफ NHAI ये कहता है एक्ट में कि आप 20 किलोमीटर के दायरे के अंदर हर रेसिडेंट को आप छूट देंगे। उसके बावजूद फिर ये लूट जो यहाँ पर इस टोल टैक्स पर दिल्ली देहात के लोगों के साथ करी जा रही है, वो किस बिना पर करी जा रही है? छूट दी जाए तो पूरे गांव को दी जाए, जितने हमारे 360 के गांव हैं, या इस संविधान के हिसाब से आप देख लो भाई कि 20 किलोमीटर के दायरे के अंदर जितने गांव पड़ेंगे उन सबको छूट दे दो। बात बनेगी नहीं, बात बनवाई जाएगी, क्योंकि ये बात पंचायत है और ये जो फैसला कर लेती है फिर पूरा ही होता है। फिर यहाँ बैठेंगे, टूल के ऊपर बैठेंगे, फिर टूल के ऊपर बैठेंगे। क्या लगता है कि ये बात बन पाएगी? बिल्कुल बात करने से ही बात बनती है बेटे।